हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ वाला यूनिट। ठीक है ना, बायोलॉजी का यूनिट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 12th क्लास के सिलेबस में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, इसलिए हर एग्ज़ाम जो लाइफ साइंसेज में होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड देन लेट्स बिगिन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ वाला। ठीक है ना, ODM defined pollution as undesirable change in physical, chemical, and biological properties of air, water, and soil which directly or indirectly affect human beings. ठीक है, ODM ने ये definition थी pollution की। ठीक है ना, then the major causes of pollution are automobile exhaust, increasing use of pesticides, insecticides and herbicides, chemical waste product from factories, rise in atmospheric carbon dioxide, radioactive substances, etc. A pollutant is any substance, chemical or other factor that changes the natural balance of environment. Pollutants can be classified according to existence, natural disposal and persistence. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर पॉल्यूशन। ठीक है ना, एयर पॉल्यूशन इज द अक्यूरेंस और एडिशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, गैसेज एंड आर पॉल्यूटेंट्स इन द एयर विच हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, वेजिटेशन एटसेट्रा। ठीक है, हाँ, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड डायरेक्टली emitted substances from some identifiable sources. The major primary pollutants are carbon dioxide, carbon monoxide, nitric oxide, sulfur oxide, H2S, hydrocarbons, particulate matter, DDT, chlorofluorocarbons, etc. ठीक है, then secondary pollutants are found by reaction among primary pollutants. ठीक है, for example, two primary pollutants, namely nitrogen oxides and hydrocarbons from motor vehicles, react in the presence of sunlight to form secondary pollutants. ठीक है, the secondary pollutant are photochemical oxidants include peroxyacyl nitrate PAN, then ozone, aldehyde, smog, ये secondary pollutants. ठीक है, then smog. What is smog? ठीक है ना, smog is a dark or opaque fog formed by condensation of water vapors, dust, smoke, particles, and various gaseous pollutants such as nitric oxide, NO2, SO2, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा। ठीक है, दो किस्म के स्माग होते हैं, क्लासिकल स्माग एंड फोटोकेमिकल स्माग। ठीक है, क्लासिकल स्माग इज अ डार्क ब्राउन एंड ओपेक फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ओवर डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स एट लो टेम्परेचर। ठीक है, देन फोटोकेमिकल स्माग कंटेन्स सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स. It is grey or yellowish brown opaque smog formed at high temperature over cities and towns due to still air, emission of nitrogen oxides and volatile hydrocarbons from automobile exhaust and solar energy. हाँ, next is acid rain. ठीक है ना, acid rain is the rainfall and other forms of precipitation with a pH of less than 5. pH of normal rain is 5.6 to 6.5. ठीक है, where हाँ, acid rain is caused by large scale of emission of acidic gases into the atmosphere. Oxides of sulfur and oxides of nitrogen may react with moisture to form sulfuric acid H2SO4 and nitric acid HNO3 respectively. ठीक है, सल्फर वाले सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन वाले नाइट्रिक एसिड. Acid rain causes reduced rate of photosynthesis and growth and increased sensitivity to drought and disease. Marble statues and buildings are corroded by acid rain. For example, Taj Mahal in India is affected by the acid rain. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन. ठीक है ना, सम न्यू डिवाइसेस आर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन. दीज आर, इनमें आ गया सेटलिंग चैम्बर टू रिमूव लार्ज पार्टिकुलेट्स, देन साइक्लोनिक सेपरेटर्स. हाँ, द dirty air is blasted into a conical cylinder. This creates a violent swirl within the cone. The heavy materials migrate to the wall and exit from the bottom of the cone. The clean air exit out from the top. ठीक है, ये साइक्लोनिक सेपरेटर्स. देन बैग फिल्टर्स. ठीक है, फैब्रिक बैग्स आर यूज टू कलेक्ट डस्ट लाइक कॉमन वैक्यूम क्लीनर. ठीक है, then wet collector promotes the contact between air and water. Wet collector, it promotes the contact between air and water
वेट पार्टिकल सेटल डाउन, ठीक है ना। वाटर इज इंट्रोड्यूस थ्रू अ नैरो थ्रोट सेक्शन, ठीक है, वेट कलेक्टर में। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। हाँ, इन पावर प्लांट्स द चार्ज पर्टिकुलेट मैटर्स आर सेपरेटेड एंड कलेक्टेड थ्रू पाइप, ठीक है, इसके थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। देन गैस स्क्रबर्स इज यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग गैसेस, ठीक है, यस। देन अब्जॉर्प्शन इट इज़ यूज्ड फॉर एक्टिवेटेड कार्बन टू कैप्चर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, यूजेस नहीं यूज्ड, ठीक है, अब्जॉर्प्शन। देन इंसिनरेशन, INCINERATION, incineration. It is applicable to oxidizable pollutants. The emissions are burnt at high temperature, ठीक है, incineration बोलते हैं इसे। नेक्स्ट इज कैटालिटिक कंबशन। इसमें क्या होता है कि यूज़ ऑफ कैटलिस्ट टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स। तो इन ये कुछ हमने पढ़े, इनसे जो है कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन का देखते हैं, ठीक है ना। water pollution is the deterioration of the quality of water due to addition of foreign substances, that is inorganic, organic, biological and radiological, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस हैं कि वाटर पॉल्यूशन इज द डिटोरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर ड्यू टू द एडिशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस लाइक दीज, ठीक है, फैक्टर्स लाइक हीट एंड डेप्रीवेशन that makes it health hazard, unfit for human use and aquatic organisms, ठीक है। वाटर pollutants may be of three types: biological, chemical and physical. Biological may have various pathogens, for example viruses, bacteria, protozoa, algae. Then chemical pollutants में आ गया जी आपके organic waste, organic biocides, inorganic chemicals etc. और physical में आ गया hot water, oil spills etc. ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 इज इंक्रीज इन BOD, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। हाँ, BOD और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द ऑक्सीजन इन मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड फॉर 5 days in 1 liter of water at 20 degree centigrade for the microorganisms to metabolize organic waste. When large amount of sewage is dumped into water, the BOD will increase and thus dissolved oxygen DO will decrease, ठीक है। BOD का पड़ा इंक्रीज हो जाएगा BOD। देन सेकंड इज एल्गल ब्लूम, ठीक है ना। द एक्सेस ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक एल्गी दैट काजेज कलरेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम, इट डिटोरेट्स वाटर क्वालिटी, ठीक है। नंबर 3 यूट्रॉफिकेशन, ठीक है ना। phosphorus and nitrates of fertilizers and detergents dissolved in water and accelerate growth of algae which form mat on the water surface, ठीक है। हाँ, the algal growth deoxygenates water. The algal growth deoxygenates water, which is responsible for the death of fishes and other aquatic organisms. The increased productivity of lake and pond etc. due to nutrient enrichment is called eutrophication, ठीक है। eutrophication causes reduction in dissolved oxygen, ठीक है। eutrophication से dissolved oxygen में कमी आती है। नेक्स्ट इज, हाँ, तो दो किस्म की यूट्रॉफिकेशन होती है। हाँ, इसमें एल्गी ज़्यादा हो जाती है फास्फोरस नाइट्रेट्स की वजह से, और उससे जो है ये फिशेस वगैरह ये मरती हैं, तो ये यूट्रॉफिकेशन दो किस्म की होती है। पहली जो है वो है नेचुरल यूट्रॉफिकेशन, ठीक है ना। नेचुरल यूट्रॉफिकेशन अकर स्लोली एट अ रेट विच में नॉट बी डिटेक्टेबल इन ह्यूमन लाइफ टाइम, ठीक है। देन accelerated or cultural eutrophication occurs due to human activities like passage of sewage and runoff from fertilizer fields into ponds, lakes and other water bodies, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया, ये जो इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं हमें, इंक्रीज इन BOD, एल्गल ब्लूम, यूट्रॉफिकेशन। देन फोर्थ इज बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन, द फेनोमेना थ्रू विच the phenomena through which certain pollutants such as pesticide runoff get accumulated in tissues in increasing concentration along the food chains and produce fatal effect is called biomagnification or biological magnification, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, हाँ, वेरियस लेजिस्लेटिव मेजर्स शुड बी इम्प्लाइड टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, इम्प्रूव्ड मेथड्स फॉर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज गार्बेज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। Polluted water are treated in effluent treatment plants before their release into water bodies, ठीक है ना। बायोमैग्निफिकेशन है। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, हाँ, पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल विद रेडियो एक्टिव मटेरियल इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन affects all the organisms including humans. It causes cancer, cancers, mutations and even death in humans and animals, ठीक है, रेडियो एक्टिव वाला बहुत खतरनाक. नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है, कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स, लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग और यूजिंग them should be totally checked. All safety measures for this purpose should be strictly enforced. Radioactive waste should be changed into harmless form or stored in a safe place where they may gradually decay in a harmless manner. नेक्स्ट इज सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है ना, नेक्स्ट इज सॉइल पॉल्यूशन. Soil pollution is the alteration in soil caused by removal or addition of substances and factors which decrease its productivity or quality. Pesticides, fertilizers, chemicals, and radioactive waste are the main source of soil pollution. Pesticides include insecticides, fungicides, algicides, rodenticides, and weedicides. ठीक है. Along with target organisms, they harm non-target organisms as well. This destroys soil ecosystem. नाउ कंट्रोल ऑफ सॉइल pollution, ठीक है ना. soil pollution can be checked by reducing the disposal waste, appropriate use of chemical fertilizers and use of biological pest control. The most important measures to check land degradation is restoration of forest, crop rotation, improved drainage, etc. ठीक है. नेक्स्ट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में फर्स्ट इज सॉलिड वेस्ट, ठीक है. Solid waste are discarded or left over solid materials. The various sources of solid waste are municipal waste, industrial waste, mining waste, hazardous waste, defunct ships and electronic waste, ठीक है. Then control of solid waste, ठीक है ना. Disposal of waste consists of recovery and recycling, source reduction, burning and dumping. Burning is the combustion of solid waste containing organic compound in open places. Then incineration, INCINERAT, incineration is controlled. Incineration is controlled aerobic combustion of waste. Incineration is controlled aerobic combustion of waste inside chambers at temperature of 900 to 1300 degree centigrade, ठीक है. 900 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में किसी चैम्बर्स के अंदर रख के जो है कंट्रोल तरीके से हाँ जो इराबिक कंबशन करते हैं वेस्ट की, तो उसको बोलते हैं इंसिनरेशन, ठीक है. देन पायरोलिसिस, हाँ, पायरोलिसिस इज कंबशन इनसाइड चैम्बर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट अ टेम्परेचर ऑफ 1650 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. पायरोलिसिस जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है तकरीबन 1650 डिग्री की टेम्परेचर पे, लेकिन इंसिनरेशन जो है इराबिक कंबशन होती है, मतलब ऑक्सीजन होती है, ठीक है. अच्छा, पायरोलिसिस डज नॉट यील्ड पॉल्यूटेंट्स, ठीक है. हाँ, इन सोर्स रिडक्शन गार्बेज एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट आर टेकन आउट ऑफ अर्बन एरियाज एंड यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट, बायोगैस एंड मैन्योर, ठीक है. तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा हमने. नेक्स्ट इज 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट मैनेजमेंट 3 R's होते हैं, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ठीक है. इसके बारे में देखते हैं 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. The 3 R's of waste management are reduce, reuse and recycle, ठीक है. The first R means reduce, relates to the reduction of waste. Second R, reuse, relates to the reuse of various articles. And the third R, recycle, relates to the recycling by collecting the waste articles and transforming them into the new products, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है. नॉइस पॉल्यूशन. Unpleasant loud sound is called as noise, also called as slow killer, ठीक है. हाँ, this noise pollution also called slow killer. This noise also called slow killer. And disturbing level of noise is known as noise pollution, ठीक है. Unpleasant loud sound is called as noise or slow killer, and disturbing level of noise is called as noise pollution. Noise pollution is measured in decibels. Generally, sound above 80 decibels or dB is termed as noise. A sound more than 115 decibel is harmful to the ears, ठीक है ना. 115 dB से ऊपर वाली नॉइस जो है वो हार्मफुल होती है साउंड
कानों के लिए। देन वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन इंक्लूड इंडस्ट्रीज, सोशल इवेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एक्सेट्रा, ठीक है। देन a number of temporary physiological changes occur in human body as a direct result of noise exposure. These are a rise in blood pressure, BP तेज हो जाता है, a rise in इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो ब्लड प्रेशर रेज होता है, एक इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है हाँ वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अराइज इन इंटरक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा शोर की वजह से, एंड एन इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग रेट, एंड एन इंक्रीज इन स्वेटिंग, और स्वेटिंग भी तेज़ हो जाती है, ठीक है। पसीना, हार्ट रेट तेज़ हो गया, ब्रीदिंग तेज़ हो गई। दैन अ सडन लोड साउंड ऑफ 150 डेसिबल और मोर में काज परमानेंट लॉस ऑफ हेयरिंग, ठीक है। एकदम अगर 150 dB या उससे ज़्यादा साउंड है तो हमेशा हमेशा के लिए जो है सुनने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, कैसे कंट्रोल होता है नॉइस पॉल्यूशन? ग्रीन मफलर स्कीम involves growing green plants along roadsides to reduce noise pollution. Specific legislation and regulators should be proposed for designing and operation of machines, vibrations control, soundproof cabins and use of sound absorbing materials, ठीक है। तो ये स्कीम का याद रखना नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन मफलर स्कीम, ग्रीन मफलर स्कीम नॉइस पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए, ठीक है ना। इसमें यह है कि ग्रीन प्लांट्स को ग्रो करो सड़कों के किनारे ताकि नॉइस पॉल्यूशन कम हो सके, ग्रीन मफलर स्कीम। नेक्स्ट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, उसके बारे में देखते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है ना, ओजोन लेयर डिप्लीशन, हाँ, डिप्लीशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ओवर अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया एज ओवर एंटार्क्टिका इज कॉल्ड ओजोन होल, ठीक है। हाँ, ozone depleting substances, that is ODS, are substances which react with ozone present in stratosphere and destroy the same. Major aerosol pollutant present in jet plane emissions is chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbon CFC produces active chlorine in the presence of UV radiation. These destroy ozone, converting it into oxygen. Besides CFC means chlorofluorocarbon, besides CFC used as coolants in air conditioners and refrigerators, cleaning solvents, aerosol propellants and foam insulation, ठीक है। Then nitrogen oxides which is coming from fertilizers and hydrocarbons, all these are responsible for ozone depletion, O3 depletion, ठीक है। Next is thinning of ozone layer increases the amount of UVB radiations, mean ultraviolet B radiations, reaching the earth, which affect photosynthesis as well as damage nucleic acid in living organism, ठीक है। हाँ, UVB। then decreased photosynthetic activity will increase carbon dioxide concentration of the atmosphere resulting in global warming, ठीक है। कि जब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी उससे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर की बढ़ जाएगी जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बस यही ऑक्सीजन तो कंज्यूम होती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती हैं, सॉरी ये कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है ना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन बनते हैं, ठीक है। तो अगर फोटोसिंथेसिस कम होगी तो कंज्यूम कम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो जाहिर सी बात है ये इंक्रीज होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है ना। देयर आर वेरियस हार्मफुल इफेक्ट एसोसिएटेड विद ओजोन डिप्लीशन लाइक कार्निया अब्जॉर्ब्स UVB रेडिएशंस एंड बिकम इन्फ्लेम्ड, ठीक है, आँख का कार्निया। देन हाँ, दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट, ठीक है, इसको स्नो ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट बोलते हैं, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन की वजह से UVB अल्ट्रावायलेट B रेडिएशन जो आएंगी, ठीक है, कार्निया अब्जॉर्ब करेगा उनको और आँख जो है इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, इस डिसऑर्डर को बोलेंगे स्नो ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट, ठीक है। हाँ, इट लीड्स टू डिमिनिशिंग ऑफ आई साइट, फोटो बर्निंग एंड लेटर परमानेंट डैमेज टू कार्निया दैट रिजल्ट्स इन एक्चुअल कैटरैक्ट, ठीक है, जिससे एक्चुअल कैटरैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लो ब्लाइंडनेस हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है कार्निया, ठीक है। तो ये UVB रेडिएशन जो कि उसके ओजोन डिप्लीशन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाँ, द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस
form a blanket like covering around the earth, ठीक है. It controls the escape of heat from the earth's surface to outer space and keeps it warm and hostile, ठीक है. This phenomenon is known as greenhouse effect. Greenhouse gases radiate a part of the solar energy back to the earth. The phenomena is called greenhouse flux, ठीक है. Because of greenhouse flux, the mean actual temperature of earth is 15 degrees centigrade, ठीक है. And then the various greenhouse gases are कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका वार्मिंग इफेक्ट है 60%. देन मीथेन CH4 20%. देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFC 14%. एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O 6%, ठीक है. अदर गैसेज ऑफ माइनर सिग्निफिकेंस आर वाटर वेपर्स एंड ओजोन, ठीक है. ये ग्रीन हाउस गैसेज का पार्ट है. नेक्स्ट इज लेटरली the concentration of greenhouse gases has started rising, resulting in enhanced greenhouse effect that is in increasing in the mean global temperature. It is called global warming, ठीक है. Then scientists believe that the rise in temperature is leading to serious changes in environment and resulting in odd climatic changes, for example El Nino effect, ठीक है. thus leading to increased melting of polar ice caps, ठीक है. over many years this will result in a rise in sea level that can submerge many coastal areas, ठीक है. next is some strategies should be followed to deal with global warming, ठीक है. हाँ, vegetation cover should be increased for photosynthetic utilization of carbon dioxide. Chlorofluorocarbon should be replaced with some other substitute having little effect on global warming. Reducing the use of nitrogen fertilizers to reduce nitrous oxide emission. Minimizing the use of fossil fuels to reduce the greenhouse gas emission, etc, ठीक है. तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट इनिशिएटिव्स फॉर मिटिगेटिंग ग्लोबल चेंज, ठीक है. कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं ग्लोबल चेंज को कम करने के लिए. उनमें आ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का, हेलसिंकी डिक्लेरेशन 1989 की, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का, बीजिंग प्रोटोकॉल 1999 का, ठीक है. पहला देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 16 सितंबर 1987 में हुआ 1987 में, ठीक है. इट वाज अ लैंडमार्क इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द एटमॉस्फेरिक ओजोन बाय एग्रीइंग टू लिमिट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ozone depleting substances to half the level of 1986 and helping the developing countries to implement use of alternatives to CFC. Then Helsinki Declaration in May 1989. इसमें क्या हुआ कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज रेटिफाइड बाय 82 नेशंस एट हेलसिंकी. दे प्लेज्ड टू फेज आउट CFC बाय 2000, ठीक है. थर्ड इज क्योटो प्रोटोकॉल दिसंबर 1997 में, ठीक है. क्योटो प्रोटोकॉल दिसंबर 1997 में 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, इसमें क्या था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन क्योटो जापान obtained commitments from different countries for developing alternatives to ODS, ठीक है ना, एंड ozone depleting substances and reducing overall greenhouse gas emissions at a level 5% below 1990 लेवल. 1990 के लेवल से 5% कम. कब तक? 2008 से 12 तक, ठीक है. ये क्योटो प्रोटोकॉल हमने पढ़ा. देन बीजिंग प्रोटोकॉल 1999 में हुआ 1999 में. दिस प्रोटोकॉल लेज डाउन स्टेप्स टू रिड्यूस एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स and other ozone depleting substances. It separates the efforts to be made by developing and developed countries, ठीक है. बीजिंग प्रोटोकॉल. ये तो कुछ इनिशिएटिव्स फॉर मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्म चेंज. हाँ, नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन. इसके बारे में पढ़ते हैं. डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना. डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना, ठीक है ना. डिफॉरेस्टेशन इज द रिमूवल, डिक्रीज और डिटोरेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ एन एरिया, ठीक है. हाँ, हटा मतलब फॉरेस्ट को ख़त्म करना, कम करना या उनको ख़राब करना डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है ना. इट इज़ काज ड्यू टू जम कल्टिवेशन, ठीक है. डिफॉरेस्टेशन जो है इट इज़ काज ड्यू टू जम कल्टिवेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, फॉरेस्ट फायर्स, ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट्स, रोड कंस्ट्रक्शन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड फॉर टिम्बर प्रोडक्शन. इन चीज़ों की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है. देन results of deforestation. Its results include soil erosion, desertification, drought, loss of plant and animal habitats, ecosystem disturbance, global warming, etc, ठीक है. next is a Bishnoi woman,
A Bishnoi woman, Amrita Devi, showed exemplary courage by hugging a tree and daring king's men to cut her first before cutting the tree. ठीक है, ये अमृता देवी ने एक बहुत बहादुरी दिखाई, ठीक है, एक पेड़ के साथ चिपकी, उसने किंग जो बादशाह का बंदा था उसको बोला कि पहले मेरे को काट, उसके बाद ट्री को काटना। कौन थी ये? अमृता देवी, ठीक है ना। तो अमृता देवी जो है, इन हर ऑनर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड द अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ फ्राम रूरल एरियाज दैट हैव शोन एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो उसी के ऑनर में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड बनाया उन इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ के लिए जिन्होंने जो है बहुत बहादुरी दिखाई है और डेडिकेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग चिपको मूवमेंट ऑफ गढ़वाल हिमालयाज, लोकल वीमेन शोड इनॉर्मस ब्रेवरी इन प्रोटेक्टिंग ट्रीज फ्रॉम द एक्सी ऑफ कंट्रैक्टर्स बाय हगिंग दम। ठीक है, पेड़ों से चिपक के और कुल्हाड़ों से बचाए, ठीक है ना, कंट्रैक्टर्स के चिपको मूवमेंट में। नेक्स्ट इज, ये गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट इज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980s हैज़ इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM so as to work closely with the local communities for protecting and managing forest. In return for their services to the forest, the communities get benefit of various forest products, for example fruits, gum, rubber, medicine, etc., and thus the forest can be conserved in a sustainable manner. हाँ, तो इस वीडियो में जो है एसिड रेन के बारे में देख लेते हैं, ये कैसे जो है ये पॉल्यूटेंट्स वगैरह निकलते हैं, ठीक है ना, ये कैसे रिएक्शन होती हैं, कैसे एसिड रेन वगैरह होती है, ये सारा हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है ना, लेट्स बिगिन। तो हाँ, ये सोर्सेज पहले देख लेते हैं। जैसे ये इंडस्ट्री से निकले क्या जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड और, ठीक है ना, हाँ, और फिर ये जो है इधर से निकला जी सल्फर डाइऑक्साइड H2O, ठीक है ना। तो ये इधर जो है एटमॉस्फेरिक वाटर भी है, और तब ये इधर रिएक्शन होंगे कुछ, ठीक है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, फिर ऑक्सीजन, तो N2O5 बना, फिर N2O5 प्लस वाटर मिल के जो है ये नाइट्रिक एसिड बना HNO3। इसी तरह टू टाइम SO2 प्लस O2, ठीक है, सल्फर के कंपाउंड मिले और SO3 बना, ठीक है, SO3 प्लस वाटर मिले तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना, ठीक है ना। हाँ, तो फिर ये बारिश होगी एसिड रेन की फॉर्म में, ठीक है ना। ह्यूमन हेरिटेज सच एज ताजमहल built of marble gets corroded by acid rain. The acid rain reacts with calcite in the marble, which make it dissolves more easily in water and thereby causes the yellowing of the stone। ठीक है, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इट के CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है ना। then CaCO3 प्लस नाइट्रिक एसिड इट गिव्स CaSO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये जो है कैल्साइट जो है, हाँ, उससे मिल के और जो है उससे आसानी से ये जो है डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये जैसे ताजमहल दिखाया गया, इस पर बारिश हुई, ठीक है ना, तो फिर जो है कितना ये क्रोड होना शुरू हो गया, क्रोजन, ठीक है ना। तो ये देखो, ठीक है ना, ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल क्रोजन ही हो गया सभी का। हाँ, उसके बाद ये देख सकते हो आपके एसिड रेन काजेज स्लोइंग ग्रोथ, डैमेज एंड इवन डेथ ऑफ ट्रीज, ठीक है। हाँ, ट्रीज को मार देती है। देन ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू एसिड कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द रेन काजेज एसिड क्रोजन एट मच फास्टर रेट, ठीक है ना, एसिड क्रोजन हो जाता है। ये देख लेते हैं कि लार्ज स्केल एमिशन ऑफ हार्मफुल एसिडिक गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, जैसे ये यहाँ से निकल रही हैं, इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम अ वोल्केनो, एग्जॉस्ट फ्रॉम व्हीकल्स, स्मोकिंग, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एटसेट्रा आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एसिड रेन लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये ताजमहल के आसपास ये जो टूरिस्ट आए थे, ठीक है ना, हाँ, तो इनमें क्या होगा, फिर ये ऐसे ऐसे दिख जाएंगे कि एसिड रेन काजेज लीचिंग ऑफ एसेंशियल मिनरल्स ऑफ सॉइल, acidification of soil involves changes in their composition and affects the vegetation which in many cases die. Acid rain also causes the release of toxic substances such as
एल्यूमिनियम इनटू दिस सॉइल, ठीक है ना, ऐसी सेल बन जाएगी। देन इसका देखते हैं, द पॉल्यूटेंट्स दैट काज एसिड रेन आर नॉक्शियस, दीज गैसेज पार्टिकल्स ऑफ सल्फेट एंड नाइट्रेट आर कैरिड बाय द विंड एंड इनहेल्ड बाय पीपल काजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है। हाँ, और ये देख लेते हैं हम कि इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द वाटर ऑफ रिवर्स एंड लेक रिजल्ट इन द डेथ ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये इनकी डेथ होगी, ठीक है। तो ये सारा जो है ये है ग्लोबल एसिड रेन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।